Okay, let's start with the triangles again. है ना, last हमने जो छोड़ा था that was on basic proportionality theorem. We'll come back to that. So first half an hour will again take on similar triangles. So first I'm interested in properties of similar triangle. Anyone? What is property of similar triangles? All the angles are same. Corresponding angles are same. At least two angles are. At least two angles are same. That is The not third property. angle. That is the requirement. है ना? Two triangles are similar when they have got at least two angles are equal, or if they have got two sides being proportionate to each other and the angle between these two sides are equal. ठीक है, तो बेसिकली सिमिलैरिटी के लिए दो कंडीशन है. वन इज एंगल एंगल एंगल, सेकंड इज SAS where the sides ratios are equal and the angle between those sides are equal. ठीक है, I am interested in properties of similar triangle. हाँ जी, Ratio of sides are equal. रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होगी एंड दिस इज इक्वल्स टू Ratio of area square. Ratio of रेशियो median. ऑफ मीडियन, Ratio of perimeter. Ratio of Ratio of- circumradius. पेरीमीटर, रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस, रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड, और किसी ने बोला रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया. नो, दिस इज रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एरिया. ठीक है ना, एरिया की रेशियो इज स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स. क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's take some questions on this. Sir, 1 second. हाँ जी, find value of x. विराज आपका गलत है बेटा. Okay, I am getting different answers here. Answers are coming as 4 centimeter, 8 by 5 centimeter, 10 centimeter, 5 by 2 centimeter, 2 by 5 centimeter. Okay, let's see who is correct here. चलो, कौन हेल्प कर रहा है? Any volunteer? हाँ जी, volunteer. What happened? सर वो BOA और सर मैं बोलूँ ना सर. हाँ जी, बोलो. सर BOA और DOC सर एंगल इक्वल होंगे. Okay, very good.
सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सर, और हाँ जी, BOA और COD इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सर, और COA और COD तो वर्टिकली अपोजिट है बेटा। सॉरी सर OCD और OBA OCD and OBA, these are alternate सर interior ऑल्टरनेट angle, they are एंगल्स equal, सर, and thus और the two triangles are हाँ सर similar. सिमिलर Which two triangle? Triangle BAO is similar to triangle CDO. ठीक है? From here you will take the ratio of sides. Ratio of sides is AO upon BO is equals to DO upon CO. AO की वैल्यू कितनी है 5, BO is 4 is equals to DO is 2, CO is X. So X is equals to 8 by 5 centimeter. हाँ जी, क्लियर है क्वेश्चन? यस Yes, sir. सर एक बार नोट करना था सर। ओके, सर हम इसका आंसर पॉइंट्स में भी दे सकते हैं। हाँ डेसिमल में भी दे सकते हैं आप, ठीक है, प्रेफरेबली डेसिमल में देना ज़्यादा सही है, ठीक है। डन सर। डन डन, ओके। 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, X centimeter. Find value of X. तो ये आपका सर्कल का क्वेश्चन नहीं है ना, दिस क्वेश्चन इज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हाँ जी, लेट्स सी हियर, इसको हमने O माना है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। चलो आगे कौन बता रहा है? अभिराज कैसे करेंगे बेटा? तांत्रिक कैसे किया आपने? सर AOC और DOB वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके, ये इक्वल हो गए। और सर OAC और DVO ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर क्यों हो गए? ये पैरेलल लाइन किसने गिवन? मैंने तो नहीं बोला पैरेलल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर तो पैरेलल लाइंस के इक्वल होंगे ना। ओके, एनीवन एल्स? हाँ जी भाई, पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट। Sir, we will join AD and BC. चलो ज्वाइन कर दिया इनको। Sir, so angle BAC will be equal to angle CDB. एंगल CDB, वेरी गुड, है ना। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है बेटा, ठीक है। तो व्हाट इज सेइंग इज दीस आर द एंगल्स ऑन द सेम कोड, thus these angles are equal,
ठीक है, सेम वे these are the angles on the same chord, thus these angles are equal ना, and these two triangles are similar. ठीक है, सो ये आपका वो है. सो विल से दैट ए, कौन से ट्राइंगल सिमिलर है पहले, ए सी ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी ओ, राइट. So you'll say that AO upon BO is equals to AO upon OC ले लेते हैं ना, AO upon OC is equals to DO upon OB. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन भी आ रहा है, दैट इज AO into OB is equals to CO into OD. ठीक है, वैल्यू डालेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा. इसको आप एज अ थ्योरम भी लिख सकते हैं. ये थ्योरम आपका सर्कल चैप्टर में वापस घूम कर आएगी, है ना. दैट थ्योरम इज इफ देयर इज अ सर्कल इज देयर एंड टू chords आर intersecting each other and this is your A, B, C, D and this is your O, then AO into BO is equals to CO into DO. है ना, नोट डाउन कर लें इसको. प्रूफ किससे आएगा, सिमिलर ट्राइंगल से. सर हमने अबव वाला क्वेश्चन वो वैसे क्या है ना कि द chord subtend angle on the circumference. हाँ जी, सेम chord subtends equal angle on the circumference. chord BC जो है तो वो सेम इक्वल एंगल सब्सटेंड करेगी, है ना. सो these angles are equal, angle 1 and angle 2 are equal. So AO was 2, BO was X is 4 into 3. Solve करेंगे, X is 6 centimeter. बेटा यहाँ पर O सेंटर ऑफ सर्कल नहीं है, O इज अ मीटिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट्स इट. ठीक है, एक बार फिर से वापस इसको देख लेते हैं. इस सर्कल में अगर आप देखेंगे, इफ आई जॉइन दिस टू, ठीक है, एंड आई जॉइन दिस, नाउ AC is a chord. AC chord will always subtend equal angle at the center. So this angle is equals to this angle, right? And these are vertically opposite angles. So if two angles are equal, that means these two triangles are similar. If triangles are similar, then the ratio of side will be equal. Similar कौन से हैं, triangle DOA is similar to triangle BOC. So you will say that DO upon OA is BO upon OC, and you are getting is OC into DO is equals to BO into AO. That's the relation we are looking. Clear है सबको ये वाला? Yes, sir. Okay, one more. ये सारे सिमिलर ट्राइंगल के क्वेश्चन है. सिमिलर ट्राइंगल में आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू प्रूव जो दो ट्राइंगल्स गिवन है उसमें एंगल्स इक्वल है ना. हाँ जी, एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल कर दो. ठीक है. अगर आपने प्रूव Thank you, कर sir. दिया कि दो ट्राइंगल्स में एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल होगी, है ना, एंड देन यू हैव टू यूज दैट फैक्ट. सर इस क्वेश्चन से भी ऊपर स्क्रॉल कर दो. हो गया बेटा? Yes, sir. चलो भाई, फिर से है ना, अगर नहीं समझ में आया कुछ तो पूछो, है ना, क्योंकि ये बेसिक्स है. अभी फिर आगे थोड़े थोड़े से मुश्किल होने शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन.
चलो then let's take the next one. This is P is there. This is A. This is B. This is C. This is D. Okay. This is 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter, X centimeter. Find value of X. Those who are thinking, I'm giving you a hint. Join AB and join AC. Now you can see two triangles and you know what you have to apply. सर BD और AC पैरेलल बनेंगे? नहीं, सर आंसर पॉइंट्स में ही देना है ना? फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों चलेगा. आई थिंक सभी लोग सेम मिस्टेक कर रहे हैं. एक बार देख लेते हैं था बेटा. सचित, ये एंगल था बेटा किसके इक्वल होगा? सर ये मैंने सी के इक्वल लिया. सी के इक्वल क्यों ले लिया आपने, ये बताओ. तब बीडी और एसी पैरेलल नहीं होंगे मतलब? क्यों होंगे? मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं पैरेलल है. ठीक है, ये हटा देते हैं इसको. Now let's say if I am doing it like this. चलो, कोई फर्क हुआ इसमें? ठीक है, क्या अभी आपको पैरेलल दिख रहे हैं? नो सर. तो आप अपनी तरफ से नहीं ले सकते बेटा पैरेलल, है ना. खाली आप नहीं, पूरी क्लास ने उनको पैरेलल लिया, जबकि बीच में किसी ने पूछा था एंड आई टोल्ड कि these are not parallel. Until and unless things are specifically given or you can prove it, you will not assume it by yourself. ठीक है. Now tell me, class 10th, थोड़ा सा 9th का रिकॉल करो and tell me एंगल D किसके इक्वल है? Okay, tell me what is ABDC? What specific? Sir, angle D is equals to angle A. Exterior angle A, है ना. ये Yes. आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. सो दिस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं. एंड these two angles are equal, है ना. That's exterior angle of a cyclic quadrilateral is equals to interior opposite angle.
चेक कर लो, किसी को डाउट है प्लीज आस्क। सेम वे में दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। आपको आपके दो मिल गए हैं ट्राइंगल्स जो सिमिलर हैं। लक्ष्य, कौन से ट्राइंगल सिमिलर है बेटा? ट्राइंगल BDP इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल? लक्ष्य, आर्यन जहांगीर? Triangle CAP. ट्राइंगल CAP, ठीक है। देन यू विल टेक द रेशियो। रेशियो किसकी? जो साइड गिवन हो। BP हमें गिवन है, BD गिवन नहीं है, बट DP हमें गिवन है। सो यू विल से BP अपॉन DP। अगर यहाँ BP लिया तो यहाँ पर CP लेना पड़ेगा, CP अपॉन AP, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट यू आर गेटिंग इज AP इंटू BP, और इसको ऐसे लिख लो ना, PA इंटू वन सम इशू, वेट, ओके, दिस इज PA इंटू PB is PC into PD, ठीक है। वैल्यूज डालेंगे, यू कैन गेट योर आंसर। PA is 4, PB is 7 is equals to PC is 5 and PD is 5 plus X, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, you'll get your answer। बेटा जो ऊपर थ्योरम की थी, जो नीचे की है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। एक सर्कल में अगर दो कॉर्ड्स अंदर की तरफ इंटरसेक्ट करें, दिस इज ABCD एंड P, देन आल्सो PA इंटू PB इज PC इंटू PD। और दो कॉर्ड्स अगर बाहर की तरफ इंटरसेक्ट करें, देन आल्सो दिस इज सेम फॉर्म। और ये प्रूफ कैसे होगा? दोनों में प्रूफ इज बाय सिमिलर ट्राइंगल्स। राइट? सर वो ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा सकते हो? इसको लिख लेना है ना, and think of its proof again after 2 days how to solve this। सर आप इस क्वेश्चन में वो x की वैल्यू भी निकाल सकते हो? कौन पूछ रहा है? सर किसने अब पूछा भाई? क्यों सर भाई? मेरा x की गलत वैल्यू आ रहा है वैल्यूज। गलत क्यों आ रही है? मतलब दिस इज 28/5, 28/5 is 5.6, x is coming as 5.6 is 5 plus x, so x is 0.6, ठीक है ना? यस। ओके, हाँ जी, कौन सी फिगर है ये? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, वेरी गुड, ठीक है। ट्रेपेजियम में ये मैंने बना दिए इसके दो डायगोनल्स, ठीक है। एंड दिस साइड इज 4 centimeter, this side is 9 centimeter, and this area is, let's say, 3 centimeter square. Find this area।
हाँ जी। ओके भाई, बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। लेट्स सी हियर। प्रियंका, आपने कैसे किया बेटा? सर पहले ट्रायंगल COD एंड AOB को सिमिलर प्रूव किया, तो ट्रायंगल एंगल A इक्वल्स COD, एक मिनट, ट्रायंगल COD इज सिमिलर टू, you will say these angles are alternate interior and these are vertically opposite, है ना? यस सर। So this is similar to triangle AOB. AOB। हाँ जी, आगे बताओ। सर उसके बाद मैंने साइड्स CD बाय AB का स्क्वायर Very इक्वल्स टू good। 3 बाय क्वेश्चन मार्क। By AB square is equals to 3 upon area of triangle यस सर। AOB, है ना? So this is CD by AB. CD by AB is 4 by 9. 4 by 9 का square is 16 by 81 is 3 by area of triangle AOB. So area of triangle AOB is 3 into 81 by 16. So that's 243 by 16 centimeter square। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करेंगे 160 18 15.02 सेंटीमीटर, 1 मिनट, 240 by 2, around 15.2 centimeter square। So Siddhant, Lianka, only 2 are correct। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स का 27/4 आया था। श्रेया, आपका कैसे आया बेटा 27/4? सर मैंने स्क्वायर नहीं किया था। स्क्वायर नहीं किया है ना, तो ध्यान रखना आप। अथर्व, ठीक है? यस सर। 27/4 और किसका आया था? निश्चय, कुशाग्रा। ठीक है, स्क्वायर का ध्यान रखना है आपको। एरिया इज, रेशियो ऑफ एरिया इज स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स। ओके, वन मोर। वन मिनट। Angle BCD, this is ABC. Angle BCD is equals to angle BAC. Yeah, you have to find perimeter of triangle ADC.
सर 9 BD की लेंथ है या फिर AB की? BD की 9 सेंटीमीटर बेटा। ओके सर। सर हाँ जी। सर DC AB का ऑल्टीट्यूड है क्या? नहीं। ओके। Okay, I'm getting few answers now. चलो भाई, दिमाग की बहुत फोड़म फाड़ी की है ना। कौन बता रहा है? बैच मिलके सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, फर्स्ट वन बताओ कैसे स्टार्ट करें। हाँ जी, एनीवन, एनी इनपुट? सर अब AD को X एज्यूम। AD को X एज्यूम कर लिया, ये लो, इसको Y कर लिया। अब बोलो। हाँ जी बैच, सिमिलर ट्रायंगल का चैप्टर चल रहा है भाई। यहाँ पर ट्रायंगल कितने दिख रहे हैं आपको? टू। 2 ट्रायंगल्स, फिर से देखो। सर थ्री। 3। 3 ट्रायंगल है ना। हाँ सर 3। इन 3 ट्रायंगल्स में से कोई 2 ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं आपके? अगर आप इस वाले येलो ट्रायंगल, बेटा इस वाले एंगल को देखेंगे, ये एंगल तो सिर्फ एक ही ट्रायंगल का बन रहा है ना। कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल DBC। सिर्फ ये DBC में ये एक एंगल दिख रहा है आपको। ये वाला एंगल 2 ट्रायंगल्स का है, एक या तो छोटे वाले का या फिर बड़े वाले का। छोटे वाले में ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में और कोई एंगल सेम नहीं है, बट ट्रायंगल 2 एंड बड़ा वाला ट्रायंगल, उनमें कौन सा एंगल सेम है? सर एंगल B। एंगल B, क्योंकि ये एंगल B कॉमन है। ठीक है, समझ में आया कौन से 2 ट्रायंगल हैं सिमिलर हमारे? यस सर। सो दिस इज सर एक सिमिलर बार टू एक्सप्लेन कर ट्रायंगल। दो। बेटा स्टार्ट तो करने दो, ठीक है। फिर से ये जो हमारा एंगल है, ठीक है, मैं 2 ट्रायंगल ले रहा हूँ बेटा। एक ट्रायंगल इज दिस वन, दिस इज वन ट्रायंगल, एंड द सेकेंड वन इज दिस वन, सेकेंड वन इज दिस वन। ये सेकेंड ट्रायंगल है।
ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में एक तो ये येलो वाला एंगल इक्वल है, तो येलो वाला एंगल जो है छोटे ट्रायंगल में तो एंगल डी को रिप्रेजेंट कर रहा था, बड़े में ये जो है ए को रिप्रेजेंट करेगा। एंगल बी दोनों में सेम है, तो एंगल बी इज इक्वल। ठीक है। एंगल सी की जगह पर क्या आएगा, जो छोटे वाले का डीबीसी है उसमें, सॉरी, छोटे वाले का डीबीसी में बी सी की जगह पर आएगा ए। ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, और ये एंगल बी जो है दोनों में कॉमन है, एंड डी की जगह पर क्या आ जाएगा, D. सी। तो DBC is similar to triangle CBA. चलो small pause. Any doubt? Let me know. I'll explain again. सर एक और बार DBC CBA के कैसे सिमिलर हो, एक और बार समझा दो। दोनों ट्राइंगल को पकड़ के खींच के अलग कर लो। बड़ा वाला ट्राइंगल ये रहा आपका, ठीक है। ये कौन सा है, ABC। अगर ये x है तो ये भी x होगा ना, तो इस एंगल को मैंने क्या नाम दिया, x। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, छोटा ट्राइंगल DBC, इसको यहाँ पर अलग से लिख लो। ये एंगल कितना है यहाँ पर, x। और ये एंगल अगर y है, ठीक है, DBC, तो ये यहाँ पर ये y हो गया और यहाँ पर ये y हो गया। ओके सर। है ना, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ओनली थिंग इज बोथ द ट्राइंगल्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर, तो वो सिमिलैरिटी दिखती नहीं है। ठीक है। जबकि सिमिलैरिटी कैसे आ रही थी हमारे पास, एक एंगल इक्वल गिवन था और एक कॉमन था बस। क्लियर है, आगे बढ़े इसमें। अब किसी को अभी भी डाउट है तो प्लीज आस्क। ठीक है, चलो इसमें आगे देख लेते हैं अभी। तो हमारे पास बेटा डीबीसी में तो सारी चीजें गिवन है, आप एबीसी की भी सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज डीबी इज टू बीसी इज टू डीसी इज इक्वल्स टू सीबी इज टू बीए इज टू एसी। अब देख लो क्या क्या गिवन है। डीबी कितना है आपका, डीबी इज 9 is to 12 is to 6 is equals to CB is 12 is to BA is to AC। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप रेशियो लेंगे तो 9/12 is equals to 12/BA and BA is 16। So BA is 16, therefore X is how much, ये वाला X कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। Small pause again. Ratio of side in similar triangle is equal, है ना, सारी रेशियोज इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने पहले यहाँ पर इन दोनों की रेशियो ली 9/12, दिस इज 12/BA, तो ये इक्वल होनी चाहिए थी हमारी। BA 16 आ गया। AC निकालना है तो कौन सी रेशियो लेंगे, मैं ये वाली रेशियोज प्रेफर करूंगा। सो वी आर गेटिंग 9/6 इज इक्वल्स टू 12/AC, और AC is 6 into 12/9, so that is 8 centimeter. AC is 8 centimeter. Perimeter of triangle ADC. Perimeter of triangle ADC is 6 plus 7 plus 8, that is 21 centimeter. चलो नोट कर लो, कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें. Sir, 1 second. ओके. ओके. चलो नेक्स्ट वन. हाँ जी, ये क्या Sir, बनाया? last line. लास्ट लाइन. Thank you, sir. चलो, व्हाट इज दिस? आप लोग ना Quadrangle. के पार्टिसिपेट नहीं करते हो, मरी मरी से आवाज आती है. ठीक है. I'll invite all of you in other batches, है ना. टीचर also loses energy. टीचर जो है मतलब needs an enthu from the students itself. आप थोड़ा सा रिप्लाई करेंगे, I'll be more enthusiastic to give more questions. ठीक है. 1 minute. चलो भाई पार्टिसिपेशन करो, है ना. This is 27 centimeter, this is 9 centimeter, this is D. Find BD. ये 90 डिग्री है. अच्छा. नहीं भाई, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए था. ठीक है. चलो, अरे कौन कहाँ? आ रहा है? ओके, लेट्स कॉल निष्ठा. निष्ठा, माइक पे आओ बेटा. नो. अरुणिमा. सात्विक. Yes, sir.
चलो सात्विक बेटा, ये एंगल x है, तो ये एंगल कितना होगा? सर पता नहीं। नहीं सोचो, x की टर्म में सोचो। हाँ जी अदर्स, अर्जुन 90 कितना होगा? minus x. 90 माइनस एक्स, है ना? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया है यहाँ पर हमने, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? ये x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 90 minus x. 90 माइनस एक्स। तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं? 3 ट्रायंगल है ना यहाँ पर। ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये देखो, हाँ जी यहाँ पर x है तो x से x को मिलाएंगे, ठीक है, x से x को मिलाएंगे तो BCD. BCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CB. ACB। तीनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, बहुत स्पेशल केस बन रहा है यहाँ पर। ऑल 3 ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड है उस पर काम कर लो आप। रिक्वायर्ड वाला कौन सा पार्ट है? आपको जो गिवन है और जो फाइंड करना है उसको ढूंढो, ठीक है। गिवन क्या है? ये वाली साइड गिवन है आपको, और ये वाली साइड गिवन है, तो बताओ कौन से ट्रायंगल हो गए आप? और ये साइड है जो आपको फाइंड करनी है ना? तो दोनों ही केस इसमें आ रहे हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। और किसको इन्वॉल्व करोगे? AD एंड BD को। सो यू विल से AD अपॉन BD is equals to AD upon BD is equals to BD upon CD, or cross multiply, this is AD into CD is equals to BD का square, ठीक है। AD is 27 into 9 is BD square, and BD is 9√3 सेंटीमीटर। सर एक बार फिर से बता सकते हो आपने तीनों ट्रायंगल में से कौन से 2 ट्रायंगल कैसे चूज किए? बेटा जो साइड हमें गिवन है हम उसको लेंगे, और जो फाइंड करना है उसको लेंगे। ये 2 चीजें हमारी रिक्वायरमेंट है ना। तो हमें जो गिवन है, तो गिवन हमें कौन सी साइड है? AD गिवन है, इसको ऐसे ले लेते हैं। हमें AD गिवन है और BD फाइंड करनी है, CD गिवन है और BD फाइंड करनी है, तो छोटे वाले ट्रायंगल्स लेंगे। ओके सर। सर हाँ जी सर एंगल C 90 minus 6 कैसे आया, एक बार बता दोगे प्लीज? एंगल C, बेटा यहाँ पर देखो, ये समझ में आया था ये 90 माइनस एक्स कैसे हुआ? ये x था, तो ये वाला एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी में 90 माइनस एक्स, अगर if this angle is 90 minus x, then this angle is x, because this full angle is 90 degrees. Again angle sum property in this triangle, and this angle will be 90 minus x. फिर से देख लो, है ना। ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। अगर आपने इसको x लिया है तो एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल 90 माइनस एक्स, ये पूरा तो 90 था, 90 में से 90 माइनस एक्स गया तो ये एंगल x बच गया। बट ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचा? 90 माइनस एक्स। क्लियर है? यस सर। Excuse me, sir. Am I audible? हाँ जी बेटा, यू आर ऑडिबल नाउ। सर मैंने BD is equal to √243 दिया था, तो वो सिंप्लीफाइड नहीं था, इसलिए गलत है क्या? हाँ नहीं, सही है। आंसर देख लेते हैं। आपका आंसर आया ही नहीं है बेटा यहाँ पर। सर √243 था, अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी सर। अच्छा, इट्स ओके, गुड।
ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना वैल्यू की जगह डायरेक्ट भी आता है कई बार। ठीक है, डायरेक्ट कैसे आएगा, प्रूव दैट BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू CD। इसमें आपको ऐसे प्रूव करना होगा डायरेक्ट। ठीक है, एंड समटाइम्स यू नो दैट, चलो उस चीज को बाद में करते हैं। सर वो सिमिलर ट्रायंगल ACB से कैसे हुआ? क्यों भाई, तीनों एंगल सेम है, x 90 माइनस एक्स एंड 90। ACB के भी तो वही एंगल है, x 90 माइनस एक्स और 90। ओके सर। कॉपी कर लिया सबने? सर पर हम वैसे एक मतलब ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC भी ले सकते थे, पर उसमें ज्यादा टाइम लगता। ज्यादा नहीं आती ही नहीं वैल्यू। वैल्यू कैसे आ जाती है आपके पास? हमें तो BD की वैल्यू निकालनी है, कोई और वैल्यू थोड़ा निकालनी है। है ना? हाँ जी भाई, आप लोग रिप्लाई Okay, बैक किया करो, है ना। वंस यू आर रेजिंग डाउट आई एम क्लियरिंग इट, जस्ट रिप्लाई बैक दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, चलो ऐसा करते हैं, मैं पाइथागोरस थ्योरम यूजुअली थोड़ा बाद में लेता हूँ, बट विल टेक इट नाउ ओनली, है ना, सो दैट द थिंग बिकम्स क्लियर एट दिस पॉइंट इटसेल्फ। इसी क्वेश्चन को वापस ले रहे हैं। ठीक है, सर एक सेकंड वेट। थैंक यू। prove that AB square plus BC square is equals to AC square। ठीक है, हमने अभी ऊपर क्या प्रूव किया था, that if this angle is x, this is 90 minus x, ठीक है, and this angle is again x and this angle is 90 minus x। So here all the three triangles are similar, that is triangle ABD is similar to triangle ABD similar to BCD is similar to triangle ACB। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? No, sir. ओके, ठीक है, नाउ आई नीड, मेरे को स्क्वायर्स में टर्म चाहिए ना, AB स्क्वायर BC स्क्वायर। अगर मैं रेशियो देखूं तो बेसिकली दोनों साइड में मेरे पास AB आना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा तो AB स्क्वायर बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास BD स्क्वायर कब बना था, जब इधर भी BD था और इधर भी BD था। ठीक है, देन आई वाज गेटिंग BD स्क्वायर। सो लेट्स सी हियर, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन AB स्क्वायर, तो मुझे कौन से दो ट्राइंगल कंसीडर करने होंगे? वन इज दिस ट्राइंगल, यहाँ पर AB साइड आ रही है, दूसरा ये वाला ट्राइंगल, यहाँ पर भी AB साइड आ रही है। ठीक है, यहाँ पर AB कैसे आएगा, जब मैं यहाँ AB लूंगा तो यहाँ पर मुझे AC लेना पड़ेगा, है ना। AB अपॉन समथिंग इज इक्वल्स टू AC अपॉन समथिंग। अब ये समथिंग में क्या लें, हमें दूसरी साइड भी AB आना चाहिए, तो यहाँ पर हम AB लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास AD। ठीक है, as triangle ABD is similar to triangle ACB। चेक करो यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है AB स्क्वायर इज AC इंटू AD। बताओ, चलो कौन सा ट्राइंगल है BC स्क्वायर के लिए? Sir, triangle BCD and ACB. वेरी गुड।
ट्राइंगल BCD सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। विजय बताओ कौन सी रेशियो लेंगे? यहाँ पर BC होना चाहिए। सर BC अपॉन BD। बेटा BD लोगे तो यहाँ पर फिर AB बन जाएगा। मुझे तो BC चाहिए ना दोनों साइड में। यहाँ पर BC और यहाँ पर भी ये BC होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर BC लिया तो BC के कंपेरेटिवली दूसरी साइड क्या हो जाएगा हमारा? AC। AC। दिस इज इक्वल्स टू AC। अब दूसरी साइड में BC लेंगे तो पहली साइड में क्या हो जाएगा? CD। CD। और यहाँ से क्या मिला हमें? BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू CD। ठीक है, this is 1, this is 2, adding 1 and 2 to get AB square plus BC square is AC into AD plus AC into CD। कॉमन क्या निकला? AC, that is AD into CD, AD plus CD। ठीक है, AD plus CD is again AC, so this is AC square, hence 2। So Pythagoras theorem is proved by similar triangles। सर अगर क्वेश्चन आए कि प्रूव पाइथागोरस थ्योरम तो हमें BD कंस्ट्रक्ट करना होगा। हाँ जी, आपको पूरा ही कंस्ट्रक्ट करना है, ट्राइंगल ABC एंड देन परपेंडिकुलर BD। सर हाँ जी बेटा। सर केमिस्ट्री टेस्ट का डिस्कशन कब होगा? वेडनेसडे को कर लेते हैं। Done? Copied everyone? Yes, sir. Okay। One minute बेटा। ABC, AD is what? Sir, angular bisector। Angular bisector। ठीक है, given AD is
angular bisector to prove AB upon AC, AB upon AC is BD upon CD. कंस्ट्रक्शन, ठीक है, आपको प्रूव करना है x upon y is equals to a upon b. This is what you have to prove, or you have to prove that angular bisector divides the third side in the ratio in which the sides containing the angle are. ठीक है, जो angles वाली साइड है उनकी जो रेशियो है उसी में ही अपोजिट साइड थर्ड साइड विल गेट डिवाइडेड इन. Okay. Construction में what we are doing is we are drawing a line parallel. हमने इसके parallel ये line draw की है and this line we have extended. इसको हमने extend कर दिया है. It's meeting at point E. So if this angle is theta, this angle is theta, how much is this angle? सर थीटा. Theta by? सर ऑपोजिट इंटीरियर. हाँ जी, very good, very good. Alternate interior angle, so this angle is theta. So what can you say about these two triangles? ये वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गए हमारे. Similar. हाँ जी, these two triangles are similar. Also, what can you say about CE? CE किसके इक्वल है? AC है ना, क्योंकि ACE जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये Y के इक्वल होगा. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है सबको? सर ये वाला स्टेप नहीं आया सर. ओके बेटा, ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना ये? यस सर. ओके सर, समझ आ गया. आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. हाँ जी, एनीवन एल्स, एनी डाउट इन दिस? तो अगर ये दोनों ट्रायंगल बेटा सिमिलर है, if both these triangles are similar, so I will say that triangle ABD is similar, ABD is similar to triangle ECD. Now taking the ratios AB upon BD, so we are getting AB upon BD is equals to EC upon CD. AB is X, BD is A, EC is Y, CD is B, or cross multiplying, so we are getting X upon Y is equals to A upon B, और यही हमें प्रूव करना था. ठीक है, let's write it down step by step. Construction from point C, draw a line parallel to AB and meeting extension of AD at point E. Proof.
angle CED is equals to angle BAD alternate interior angle. Triangle ACE is isosceles, therefore AC equals to CE is equals to y. In triangle ABD and triangle CDE, angle BAD is equals to angle DEC. From 1, and angle BDA is equals to angle CDE, vertically opposite angle. Therefore, triangle ABD is similar to triangle ECD. Or AB upon BD is equals to EC upon CD. That implies X upon A is equals to Y upon B. That implies X by Y is equals to A by B. Hence proved. सचित बेटा रोल नंबर पहले लिखा करो. ओके सर. हाँ जी, copied everyone? Yes, sir. Okay. Basic proportionality theorem. ठीक है.
what does basic proportionality theorem says is similar to the midpoint theorem, है ना? Midpoint theorem is a version of it. In a triangle, a line parallel to one side will divide the other two sides in same ratio. ठीक है, अगर हमने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है and this line is this one, let's say DE, then if this is X, this is Y, this is W, this is Z, then X upon Y is equals to W upon Z. ठीक है, एक बार प्रूफ देख लें इसका बेटा. Now if I'll join these two, now given is these two are the parallel lines. What can you say about this yellow triangle and the pink triangle? इनके बारे में क्या बोल सकते हो आप? सेम एरिया. सेम एरिया. व्हाई? सर वो पैरेलल लाइंस के बीच में और उनका बेस सेम है. वेरी गुड. पैरेलल लाइंस के बीच में है तो दैट मींस देयर हाइट इज फिक्स्ड. हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज h and they have got same base. Common area base. is half base into height, so area of these two triangle is same. Agreed? Now Yes, sir. let's Yes, use sir. this fact. समझ नहीं आया सर कि एरिया सेम है. हाँ जी, सर एरिया सेम है वो समझ नहीं आया. एरिया सेम बेटा, क्योंकि इस ट्रायंगल का जो एरिया है ना, BDE का एरिया, BDE का एरिया क्या होगा? दैट इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. ये हाइट h हो गया, ये बेस b हो गया. और पिंक वाले का भी यही एरिया होगा, बेस इनटू हाइट. Height is the perpendicular distance of vertex from the base, and that is same as the perpendicular distance between parallel lines. Parallel line की definition ही बोलती है कि उनके बीच की का distance same होगा. ठीक है, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं. अगर ये दो parallel line है बेटा, आपने यहाँ पर एक base लिया है, ठीक है. अब यहाँ पर आप कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे, हर ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा. हर ट्रायंगल का एरिया सेम क्यों होगा? क्योंकि बेस सेम है और हाइट, वर्टेक्स की हाइट भी फिक्स्ड है. एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. अगर बेस और हाइट फिक्स्ड है तो एरिया विल बी सेम. अभी ठीक है? Now if I'll talk about this, can you tell me what will be ratio of area of triangle ADE upon area of triangle DBE? इनकी रेशियो क्या होगी? अगर यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है हमारा? ब्लू ट्रायंगल का एरिया, दिस इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. इस हाइट को अगर मैं h ले लूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अपॉन येलो वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? अगर मैं बेस को BD लूं बेटा, अगर मैं BD को बेस लिया है तो हाइट क्या हो जाएगी? हाइट इज
वर्टेक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस. So height will again be h. So this is half of BD into h again. Check करो, any doubt in this? सर ये एरिया ऑफ DBE फिर से समझा दो. हाँ जी, एक मिनट बेटा. सर हम कॉमन बेस नहीं ले सकते? दोबारा बोलो. सर हम कॉमन बेस नहीं ले सकते? बेस कॉमन कैसे होगा जब दोनों सेम बेस पे है ही नहीं? तो सर DE जो है सर वो कॉमन बेस है. तो फिर हाइट अलग हो जाएगी. मुझे जो प्रूव करना है उस हिसाब से लूंगा ना मैं. भाई जो प्रूव करना है उस हिसाब से लेंगे हम. ठीक है, अब देखते हैं वापस, है ना. ADE तो क्लियर है, आपको BDE में प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, तो बेटा अगर मैंने आपसे पूछा इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, ये जो है ना बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जो स्कूल में बहुत अच्छे से कवर नहीं कराते हैं. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर इसको भी ले लिया है, इफ आई एम सेइंग दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज परपेंडिकुलर. ठीक है, व्हाट्स द एरिया ऑफ येलो ट्रायंगल? तो येलो ट्रायंगल का एरिया विल बी half of base. Let's say this is 6 centimeter. Half of base into height. Height क्या होता है? Height is vertex से perpendicular distance. This perpendicular distance, this is the height. तो यहाँ पर height 6 centimeter नहीं है. Height is vertex का perpendicular distance from the base. That is height. So into 5. That's area of yellow triangle. सेम वे हम यहाँ पर येलो ट्रायंगल का देख रहे हैं. तो अगर मैंने बेस BD लिया है बेटा, तो वर्टेक्स E का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम योर बेस. अभी समझ में आया ये? यस सर. यस सर. ठीक है, तो यहाँ पर हाफ से हाफ कैंसिल, H से H कैंसिल, वी आर गेटिंग दिस एज AD अपॉन BD. सेम वे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC. ADE तो सेम ही है, हाफ ऑफ AD इनटू, अब मैं परपेंडिकुलर जो है वो दूसरी साइड लेना चाह रहा हूं ताकि चीज हमारे लिए इजी बन जाए. इसको H डैश ही ले लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ AE अगर बेस है तो हाइट क्या है? H डैश अपॉन, अब येलो वाले की जगह पिंक ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, अगर बेस हमारा EC है, इफ दिस इज योर बेस, तो हाइट क्या है? वर्टेक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द हाइट. So this is half of EC into H dash, and half and H dash are getting cancelled. So this is AE upon EC. बेटा आप इसको यहाँ तक कॉपी करें. ठीक है, we'll start next class from this only. इसको आगे हम कंटिन्यू करके करेंगे. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने पहले प्रूव किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एंड DEC इज इक्वल. ठीक है, अगर ये इक्वल है तो दैट मीन्स ये रेशियो भी हमारी इक्वल होनी चाहिए. अगर ये रेशियो इक्वल है तो दैट मीन्स दिस रेशियो शुड आल्सो बी इक्वल, और वी आर गेटिंग AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC. और यही हम आप एक बार कल वापस ले लोगे? हाँ जी, I'll take it again tomorrow. Okay sir, thank you sir. So let's end the session here. सर एक Thank you, sir.